आज पीआरसी के लिए जिस दिन हम लोग यूनियन ने गया है, हम लोग ने तो डायरेक्ट सवाल किया, सर हम लोग को आपको अलग से पूछने के लिए जवाब, आपको अलग से इंफॉर्मेशन देने जरूरी नहीं है। हम लोग पीआरसी का हकदार है, आप जानता है। आप पीआरसी का मैटर को आप कितना आगे तक ले जाएगा? हम लोग को क्या ऐसे ही पेंडुलम करके रखेगा? हम लोग का भविष्य वहाँ नहीं है। हम लोग का भविष्य आज हम लोग का लिखा सोनी सर का पास में है। और हम लोग खुश था कि चलो अरुणाचल सरकार ने हम लोग को एक अपना स्थायी मतलब लोकल एमएलए को दिया था, लेकिन वो भी हम लोग से छीन गया। जो आसपास के लीडर्स हैं, जैसे कि आप ही के ज़िले से जो नामचुम जी हैं जिनको टिकट मिला है, तो वो आपके ज़िले के हैं, उनको आप बाहर कह रहे हैं, और आप जिनके सपोर्ट में है वो ईटानगर से हैं, तो फिर उन पर आप क्यों भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए लीडर अच्छा होना चाहिए, लोकल नॉन लोकल से मतलब नहीं है। हमारी संख्या में आज जो बीजेपी से एनसीपी में ज्वाइन किया है वो एक अच्छा साइन है। तो यही सोचा है हम लोग लिखा सोनी सर का साथ जाएगा। एनसीपी कैंडिडेट के रूप में हम लोग सपोर्ट करेगा। कभी इलेक्शन के टाइम में जब कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आमतौर पर लोग ये सवाल करना चाहते हैं, ये जो बदलाव आपने किया है ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है या आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए है? আমার মাজত উপস্থিত আছে আমার এই আপনি এনসিপি কে আমরা হয়ে করি এনসিপি एनसीपी एनसीपी जीतेगा भाई जीतेगा लेखा सोनी लेखा सोनी लेखा सोनी लेखा साया সংগ্রাম সভাপতি এখনি প্রণাম গামোচাৰে সম্বোধনা জনাইছো বলে আমি অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে দুনিয়াতে আজি আপোনালোক দেখি পাই আছো ইয়াতে যি ফ্ৰণ্টতে আমাৰ ৰাইট আমাৰ লেফট ইয়াত যি আছে আমাৰ কাৰণে অহা নাই। আপুনি ভাবিব নিজৰ এনেকে ষ্ট্ৰং একটা নেশ্যনেল ৰুলিং পাৰ্টিটো এৰি কিনে আজি ইয়াতে আপোনাৰ ওচৰতে বহি আছে। কিয়ৰ কাৰণে আপুনি বুজিব লাগে। আপনি যে এনেকা নাই ভাবিবি আমার এনসিপি টিম অলপ ভালে আছিলে নেকি, এইটো কাৰণে আহিছে নেকি, সেইটো নাই ভাবিবি। আজি আমাৰ লেফট ৰাইট ইয়াত যিজনে আছে কাৰো কাৰণে নহয়, তাৰ নিজৰ কাৰণে নহয়, তাৰ নিজৰ ভাল ভাল পোষ্টটো ভাল ভাল পজিশ্যনটো এৰি কিনে আজি ইয়াত আহিছে। আপুনি ভাবি লওক, আপুনিবিলাক জানক এইবিলাকে দাদাবিলাক ইমান সিনিয়ৰ মানুহ আমাৰ ইন্টেলেকচুৱেল যি আজি ইয়াত আপোনাৰ ওচৰত আহিছে লক্ষণৰ দুখৰ কাৰণে লক্ষণে নষ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি কিনে আমি ৰুলিঙে হওক পুলিঙে হওক যিয়ে হওক আমি যেতিয়া ৰুলিঙত থাকে আমি ভালৰ কাৰণে হ'ব লাগে, আমার লেকন রাজর কারণে ভাল হব লাগে ভাবে। কিন্তু আমার লেফট রাইট আজি যি জনে ইয়াত আছে এইবিলাক দেখি পালে আমার লেকন বিজেপি যি পার্টিয়ে লেকনৰ সমাজৰ কাৰণে বাবা নাই, অহা দিনতে লেকনৰ ভাল কাৰণে বাবা নাই। এইবিলাকে দেখি পালে লেকন অহা দিনতে বিজেপি লগত সিহঁতে তাকিলে লেকনে নষ্ট হৈ যাব, ভাগ হৈ যাব। আমাৰ মা দাদাই ফেমিলিয়ে ভাগ বাতি হৈ যাব। এইটো কাৰণে সেইবিলাকে মনৰ পৰা অন্তৰৰ পৰা আজি ইয়াত ওলাই আহিছো। লেকনটো যিয়ে হওক যিয়ে নহওক
আমি লেখনত বচাবলৈ কি কৰিব লাগে এইটো আমি বিজেপিক এৰি কিনে আজি এনচিপি ইয়াতে আহিব লাগিব। ইমান হৈ গ'ল লেখান কাৰ হয় তো লেখান আমাৰ হয়। আমি আজি যদি অৰুণাচল টুডে লৈছে মই ক'ব বিচাৰিছো সিহঁতক যোনকেইটা কালিপৰকেইটা নিউজ ৰিলিজ কৰিছে এটলিষ্ট নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নো থকা হ'লে তাত যোনটো যদি ব্ৰিফিং দিছে তাত আমাৰ কোনোবাই সংগঠন লেখাকৰ সংগঠনত থকা হ'লে আমি মানিব আছিলো যে নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ বুলি। লেখাংকন আমাৰ এৰিয়া বুলি কোৱা শব্দটো কিমান দুখৰ কথা। লেখাং কাৰ ইহঁতৰ এৰিয়া নেকি? লেখাং কাৰ এৰিয়া হয়? লেখাং আমাৰ এৰিয়া হয়। সেইটো জবাব আমি কিবা কৰি নহয় আমাৰ মূল অধিকাৰ বুটটোহে আমাৰ পাৱাৰ। সেই পাৱাৰ পৰাহে ইহঁতক আমি জনাব লাগিব লেখাং আমাৰ হয়। ৰাইজে চবে ৰেডি আছে ন? আৰু চাওক কৈছিলোঁ বহুত ভোটত বিজেপি পাৰ্টীয়ে, সেইটো সকলো আপোনালোকে জানে। কিন্তু আমি আজি বিহাৰত এটা বিজেপি দল নেশ্যনেল পাৰ্টি কেলৈ আমি আজি হ'বলগীয়া হ'ল সেইটো বিষয়ে আপোনালোকৰ মই দুই এশমান ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। চব ৰাইজ বিজেপি পাৰ্টিক আমি বেয়া নাপাওঁ, নৰেন্দ্ৰ মোদী সঁচাকৈ আমি বহুত ভাল পাওঁ, পেমা খাণ্ডুক আমি ভাল পাওঁ। বিজেপি পাৰ্টীয়ে এই কম 10 বছৰ কালতে যিমান দূৰ আমাৰ ভাৰত দেশখন আগবঢ়াই লৈ গৈছে অন্য যদি আমি তুলনা কৰোঁ অন্যান্য পাৰ্টীয়ে কোনো কৰা নাছিলে। ডেভেলপমেণ্ট ক্ষেত্ৰত হওক বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন ক্ষেত্ৰত হওক বা অন্যান্য সকলো ক্ষেত্ৰত ডিফেন্স ক্ষেত্ৰত হওক যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সঁচাকৈ বিজেপি পাৰ্টিটো এটা ল'বলগীয়া পাৰ্টি আৰু আমাৰ ভাৰত দেশখন বহুত দূৰ আগবঢ়াই লৈ গৈছে। গতিকে আমি দেহে কেহে আমি বিজেপি পাৰ্টিক ছাপোৰ্ট কৰি আছিলোঁ, কিন্তু আমি আজি বিজেপি এৰি এনচিপিত কিয় কাৰণে জইন কৰিবলগীয়া হ'ল? पिछले 2 साल से आप लेकांग में दिख रहे हैं, तो आगे आज पे कि कुछ अलग जो पार्टीज हैं बताया गया कि कांग्रेस से और जो बीजेपी से भी ज्वाइनिंग्स हुए हैं, तो अभी क्या लग रहा है और जीत को कैसे देखते हैं? आने वाला चुनाव क्या पहले से और आसान हो रहा है, क्या कहेंगे? थैंक यू अरुणाचल टुडे एंड राष्ट्रीय दृष्टि। आज का दिन जो है बहुत शुभ दिन है लखनऊ के लिए, मेरे लिए नहीं है। जो इतना भारी संख्या में आज जो बीजेपी से एनसीपी में ज्वाइन किया है वो एक अच्छा साइन है। साइन मतलब लखनऊ का जो दुख तकलीफ को समझ गया है, उनके वो सब सोच के आज इन लोग का दुख तकलीफ को कौन रिजॉल्व कर सकता है, कौन सॉल्व किया जा सकता है, इन लोग ने सही समय पर पहचाना और दुख के साथ इतना भारी संख्या में आज एनसीपी टीम में ज्वाइन हुआ। तो मुझे लगता है तो आने वाला दिन में अच्छा ही होगा। और यही सिर्फ नहीं है, और कल परसों से ज्वाइनिंग हो रहा है और कल परसों भी और पेज वाइज ज्वाइन करते रहेगा। एक्चुअली मैं पहले ऐसे तो डायरेक्ट किसी पार्टी में वो नहीं था, क्योंकि मैं एक एनजीओ लीडर था, तो फिर भी अंदर से मतलब हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करता था। तो अभी क्या हो गया, बीजेपी सरकार जो हम लोग का सेंट्रल है या हम लोग का जो पेमा खांडू या उनका सीएम जो पेमा खांडू है, उनका दुख से हम लोग बीजेपी को नहीं छोड़ा है। कंटिन्यू बोलते हैं। हाँ, बीजेपी हम लोग को जो मैं आज 300-400 समथिंग जो आदमी जितना भी हम लोग बीजेपी से ज्वाइन हुआ है, हम लोग एक सेंटिमेंट को लेकर ज्वाइन हुआ है। क्योंकि हम लोग का एक यहाँ प्रेजेंट एमएलए था, क्योंकि अभी बोलने अगर जाएगा तो हम लोग का पास में पीआरसी राइट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं है, आपका डोमिसाइल में भी खेली मेली है। तो ये सबको सेंटिमेंट को लेके हम लोग अपना एक मतलब एमएलए जो दिया था हम लोग उसको खुश था, मतलब ना जो हम लोग का प्रेजेंट जो हम लोग का फॉर्मर एमएलए उसका ऊपर हम लोग खुश था कि चलो अरुणाचल सरकार ने हम लोग को एक अपना
स्थायी मतलब लोकल एमएलए को दिया था, लेकिन वो भी हम लोग से छीन गया। तो हम लोग किस भरोसा में हम लोग रहेगा? जब हम लोग देखा कि आज लेकांग को बचाने के लिए, लेकांग का उन्नति के लिए, लेकांग का भविष्य के लिए, लेकांग जो डूबने वाला है उनको एक तिनका का सहारा दे के लेकांग को उन्नति में आगे लाने के लिए, लेकांग को बचाने के लिए आज हम लोग का एमएलए कॉन्टेस्ट करने के लिए हम लोग का पोर्ट्रेट लेकांग में आया है। हम लोग का माननीय हम लोग का लिखा सोनी सर, उनका जो मैनिफेस्टो, उनका जो विचार, उनका जो सोच को हम लोग प्रभावित हुआ है और वही सोच को लेके और हम लोग का भी वही सेंटीमेंट है कि लेकांग को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे बचाया जाए, वो सोच के आज हम लोग बीजेपी से छोड़ के, क्योंकि बीजेपी में अभी बोलने जाएगा तो जो भी है हम लोग का भविष्य वहाँ नहीं है। हम लोग का भविष्य आज हम लोग का लिखा सोनी सर का पास में है, क्योंकि उसका मैनिफेस्टो ही अलग है, उसका सोच ही अलग है। इसलिए उसका वो सोच को प्रभावित होने का कारण हम लोग बीजेपी को छोड़ के आज हम लोग का लिखा सोनी सर का साथ यानी कि एनसीपी के साथ हम लोग ज्वाइन हुआ है। और एक सवाल आ जाता है, काफ़ी बार जैसे अपडेट्स पे लोगों द्वारा कमेंट्स भी लिखे जाते हैं, तो ऐसे भी कुछ कमेंट्स में लोग ये जानना चाह रहे थे कि जो आसपास के लीडर्स हैं, जैसे कि आप ही के ज़िले से जो नामचुम जी हैं जिनको टिकट मिला है, तो वो आपके ज़िले के हैं, उनको आप बाहर कह रहे हैं, और आप जिनके सपोर्ट में है वो ईटानगर से हैं, तो फिर उन पर आप क्यों भरोसा कर रहे हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लगातार लोग जानना चाहते हैं। हाँ, आपने सही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए लीडर अच्छा होना चाहिए, लोकल नॉन लोकल से मतलब नहीं है। हम लोग का जो लेकांग वासी का कॉन्सेप्ट जो है गलत कॉन्सेप्ट में जी रहा है। लीडर कहीं का भी हो, लेकांग को प्रोटेक्ट करने वाला लीडर होना चाहिए, लेकांग के लिए आवाज़ उठाने वाला लीडर होना चाहिए। ये नहीं कि लोकल एंड नॉन लोकल, इससे मतलब नहीं है। और हम लोग का ये कोई ये भी सेंस रखता है कि रूलिंग गवर्नमेंट, अरे जो पार्टी जीतेगा वो ना रूलिंग बनेगा। हम लोग का लेकांग में अगर लिखा सोनी साहब जीतते हैं, एनसीपी जीतते हैं, एनसीपी रूलिंग बनेगा। तो वो कॉन्सेप्ट को हम लोग को चेंज करने का समय हो गया। और देखिए 30 इयर्स हम लोग ने उनको दिया, क्या रिजल्ट आया? जब पीआरसी का मांग हुआ कैंडिडेट चेंज हो गया, जब जॉब रिजर्वेशन का मांग हुआ कैंडिडेट चेंज हुआ, पंचायती रिजर्वेशन में हम लोग का जो कल परसों कुछ लोग ने जो एप्लीकेशन आपसू को डाला उनका अगेंस्ट में आवाज़ उठाया तो कैंडिडेट चेंज हो गया। ऐसा तो होता नहीं है। तो हम लोग को समझना है, जो लेकांग के लिए आवाज़ उठा सकेगा, जो हम लोग आदमी लोग ये बोलता है कि निसी आदमी जब आ जाएगा तो हम लोग का लैंड कैप्चर करेगा। ये तो अगर हम लैंड बिकेगा ही नहीं तो कैप्चर कहाँ से करेगा? वो तो गलत कॉन्सेप्ट है। और आज अरुणाचल में अगर बोलने जाएगा तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में निसी कम्युनिटी आता है, वही एक हम लोग का आशा का किरण है। हम लोग का लेकांग का वही कम्युनिटी ही हम लोग के लेकांग वासी के लिए आवाज़ उठा सकता है, चाहे वो पीआरसी मैटर हो, चाहे डोमिसाइल मैटर हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का मैटर हो। जैसा कि लेकांग में जब भी लोगों से बात होता है पीआरसी का मुद्दा जरूर नज़र में आता है, तो क्या आपको लगता है जिन लोगों का जिम्मेदारी है या जिनको इस पर बोलना चाहिए वो लोग चुप्पी साधे रहते हैं, इस टॉपिक पर मुंह बंद करके रखते हैं? मैंने सर जब संगठन में था, मैं 2-3 टाइम्स वो लोग का साथ मैंने पीआरसी मुद्दा में गया है। वहाँ पीआरसी के लिए आवाज़ नहीं उठाया जाता है, वहाँ भाषण मारा जाता है। अरे पूरा अच्छा वेल नोइंग है वो लोग कि हम लोग का लेकांग पीआरसी मिलने का हक है कि नहीं है, पूरा जानता है। आज पीआरसी के लिए जिस दिन हम लोग यूनियन ने गया है, हम लोग ने तो डायरेक्ट सवाल किया, सर हम लोग को आपको अलग से पूछने के लिए जवाब, आपको अलग से इंफॉर्मेशन देने जरूरी नहीं है। हम लोग पीआरसी का हकदार है, आप जानता है। आप पीआरसी का मैटर को आप कितना आगे तक ले जाएगा? हम लोग को क्या ऐसे ही पेंडुलम करके रखेगा, या हम लोग का भविष्य को आप कुछ अच्छा एक निर्भर, अच्छा एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा? हम लोग यही सवाल पूछने गया था उस दिन, क्योंकि भाषण मारने का काम नहीं है वहाँ। हम लोग जस्ट वहाँ हम लोग का जो सेंटिमेंट है, हम लोग जो जिस हालत में रह रहा है उस विषय में ना हम लोग बात करना है। लेकिन हम लोग का कुछ लोग को देखा है, उस समय में जब हम लोग सीएम सर से जब बात किया था, उस समय सीएम सर ने एक बात कहा है, लेकांग में 50% आदमी को पीआरसी चाहिए, 50% आदमी को पीआरसी नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स खेलना है। तो वो किस में काउंटिंग, किसको काउंटिंग में आता है वो हमको मालूम नहीं है। लेकिन भी ये बात बहुत ही मतलब दुख दर्द वाला बात है, बहुत ही सेंटिमेंट वाला बात है। इसीलिए हम लोग मतलब पीआरसी को हम लोग वो करता है। आपको पूरा भरोसा है, आप जिनके साथ हैं और जिन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको पीआरसी मिलने में
एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर पाएंगे? बढ़िया बात, आप बढ़िया सवाल पूछा है। देखिए एग्जाम्पल एक बोलने जाएगा तो निक कमिन सर, बरदुमसा कॉन्स्टिट्यूंसी, आप 49 जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए बनाए 1 टर्म। टीआरसी किसको दिया था और किस सोसाइटी ने टीआरसी दिया? निसी सोसाइटी ने टीआरसी दिया, निसी एमएलए ने टीआरसी दिया। तो हम लोग उम्मीद करता है वही काम जो निक कमिन ने पहले किया था, वही काम हम लोग का लिखा सुनी साहब भी करने में कैपेसिटी रखता है, गट्स रखता है, और हम लोग को पीआरसी या हम लोग का जो लेकांग का जितना भी सेंटीमेंट है, जो सिचुएशन है, उसको आगे उभर के लेके आएगा बोलते हम लोग का उम्मीद है। आप किस पार्टी से आए हैं और आपने क्यों एनसीपी को ज्वाइन किया? और वहाँ नमस्कार। किस दायित्व में थे जहाँ से आप आए? सबसे पहले नमस्कार। हम पहले बीजेपी में था, पिछले 5 साल हम बीजेपी में था, और बीजेपी में हम बहुत काम भी किया है। बहुत मतलब हम लोग का जितना यंग जनरेशन का हम लोग एक साथ मिलकर बहुत काम किया है। और हम लोग अभी जितना हम लोग ज्वाइन किया है, सब लोग हम लोग बीजेपी में था, और मैडम का फेवर में था। हम लोग टोटली मैडम का फेवर में हम लोग था, और मैडम को हम लोग सपोर्ट किया था। लास्ट टाइम तक टिकट नहीं मिलने तब तक हम लोग मैडम का साथ ही सपोर्ट में था। और हम लोग का बात, ये बीजेपी का रूलिंग सरकार कोई भी हम लोग का बात माना ही नहीं। हम लोग को मतलब बेकार आदमी जैसा सोच लिया। इसलिए हम लोग इनोसेंट है, हम लोग का बहुत मतलब दुख है। इसलिए हम लोग बीजेपी को हम लोग खराब नहीं पाता है। बीजेपी बहुत अच्छा है, तो भी हम लोग लेकांग के लिए सोचा है अभी। इसलिए लेकांग के लिए जो आदमी हम लोग का काम करेगा, और लेकांग का जितना हम लोग का लीडर लोग है, वो लोग हम लोग को न्यू जनरेशन को आदमी नहीं समझेगा, हम लोग का साथ आपस में बात नहीं करेगा, तो हम लोग का तो कुछ भी होगा ही नहीं। इसलिए अभी जैसा भी देख लो, हम लोग का लीडर लोग अपना अपना मर्जी से लेके अपना अपना मर्जी का सबको ये टिकट भी दिला दिया, सब कुछ वो लोग कर लिया। हम लोग को तो कुछ भी हम लोग के लिए रखा ही नहीं वो लोग। इसलिए हम लोग लास्ट ऑप्शन यही सोचा है, हम लोग लिखा सनी सर का साथ जाएगा, और लिखा सनी को हम लोग जो डर सपोर्ट करके लिखा सनी सर को हम लोग जिताएगा। यही मेरा तरफ से, हम कसारी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। मेरा नाम मानव ज्योति सोनवाल है, मेरा यही है ऑप्शन, और कुछ नहीं है। ये पूछना चाहेंगे, इलेक्शन के टाइम में जब कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आमतौर पर लोग ये सवाल करना चाहते हैं, ये जो बदलाव आपने किया है, ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है या आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए है? ये मेरा पर्सनल मैटर नहीं है, ये मेरा पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है। हम लेकांग के लिए सोचा है, हम लेकांग राइस का साइड में है। हम लेकांग का राइस जो भी बोलेगा, मेरा यूथ, हम लोग का जनरेशन का यूथ जो सोचेगा वही उसका साथ है। अभी हम लोग का यूथ में, हम लोग जो अभी बीजेपी से हम लोग इंडिपेंडेंट में आया है, हम लोग सोच समझ के आया है, ऐसे नहीं आया है, अपना बेनिफिट के लिए आया नहीं। आज तक हम लोग सर से कुछ भी लिया नहीं। आज तक हम लोग अपना तेल खर्च, अपना बाइक होगा वो भी अपना तरफ से चला के आ रहा है। अभी तक जितना भी जो कुछ किया है अपना मर्जी से आया है, और अपना लेकांग के लिए सोच के आया है, लेकांग के हित के लिए आया है। इसलिए हम लेकांग का साथ है, जो आए लेकांग मेरा तरफ से। थैंक यू। धन्यवाद अरुणाचल टुडे एंड राष्ट्रीय दृष्टि, आप लोग को धन्यवाद करते वेलकम करता हूँ। जो सवाल करते हैं इज़ वेरी जेन्युइन। मैं बेसिकली मैं स्टूडेंट लाइफर पर मैं सामाजिक कामत जड़ित। मैं स्कूल लेवलर पर मैं संगठन आसिलो, छात्र संगठन आसिलो, कलेजतो मैं छात्र संगठन आसिलो, और जितना कलेज पास हलो तेतिया मैं पलिटिकल उइंगसत इनभल्व हो गलो। जेनेके कांग्रेसत NSY आसिलो, स्टेट लेवलत आसिलो, तारपिছত अरुणाचल कांग्रेस हल, तारपिছত जॉइंट सेक्रेटरी आसिलो, और बीजेपी सरकार हल, ताते कांग्रेसर जी माइनरिटी सेल ऑल इंडिया और माने स्टेट लेवलत मैं आसले प्रेसिडेंट आसिलो। तारपिছত बीजेपीत मुख दिছিলে अरुणाचल एतु कि स्टेट लेवलत माने एतु काउंसिल कि स्टेट काउंसिलर। तारपिছতে मैं जेतु नेকি सामाजिक समस्यात जड़ित मानुह, मैं सदाय समाजर कथा पातों,
আজি পাৰ্টিৰ ভিতৰত বি সেইটো কথাই পাতোঁ, মন্ত্ৰীৰ লগত বি সেইটো কথাই পাতোঁ। প্ৰথমতে মোৰ উদ্দেশ্য হ'ল, লক্ষ্য হ'ল যে সমাজৰ যিটো সমস্যা, যেনেকৈ মানুহ হিচাপে কনষ্টিটিউচনেলি ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইট হিচাপে যিটো আমি সুবিধা পাব লাগে, সেইটো ৰাইজে পাব লাগে, মানুহে পাব লাগে এজ এ ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে। সেইটো যেতিয়ালৈকে দিয়া নাই, সদায় মই সেইটো উত্থাপন কৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ মই মানে তেতিয়াৰ পৰাই মানে পাৰ্চনেলি হিচাপে হ'লোঁ, সংগঠন ফালৰ পৰা হ'লোঁ, মই মানে এইটো ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি থাকোঁ আৰু মেম'ৰিয়াম দি থাকোঁ আৰু আমি ডিছকাশ্যন কৰি থাকোঁ। এতিয়া হ'ল কি, যিটো নেকি মই পটককৈ বিজেপিৰ পৰা বেছিকৈ মইতো যোৱা বছৰ এৰিলোঁ বিজেপি সমস্যাত পৰি পেলাই। এইবাৰ তেখেতক মই লগ পাইছোঁ। 5 বছৰটো মই এনেই থাকিলোঁ। 5 বছৰ এনেই থাকোঁতে মই এখেতৰ কথা শুনি আছিলোঁ যে লেকাঙৰ সমস্যা, যিটো নেকি জ্বলন্ত সমস্যা, যিটো এথেনিক প্ৰব্লেম, যিটো নেকি আমাৰ অধিকাৰ লৈ পেলাই তো কোনো মান নামাতে। যিটো কৰিছিলে বিজেপি চৰকাৰে 25 বছৰ 30 বছৰ নাটকবাজি কৈ আমাক লেকাঙক ঠগালে। লেকাংটো হ'ল এটা ইন'চেণ্ট পিপল, দুখীয়া নিচলা ৰাইজ, একো নাজানে। গতিকেলৈ আমি ভাবিলোঁ যে যেতিয়া 25-30 বছৰ আমাক নাটক কৰি ডিচিশ্যন বনাই আমাক চব ঠগিলে, তা লাষ্টতো গৈতো নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰিলে যে লেকাঙৰ যিটো জ্বলন্ত সমস্যা কোনোদিনেই মানে এছেম্বলি হওক, কেবিনেট প্লেচ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে লৈ পেলাই মই চুপচাপ বহিলোঁ। এখেতৰ আৱাজটো শুনিলোঁ কেইবছৰ আগৰ পৰা, যে লিখাচনী নিচিনা মানুহ এজন দেখিছোঁ, শুনিছোঁ যে লেকাঙৰ সমস্যাটো তেখেতে বল্ডলি ক'ব পাৰিছে, আজি লেকাঙৰ সমস্যাটো মই ছল্ভ কৰিম। আৰু তেনেকৈ আমি বিশ্বাস হ'ল, কেলৈ লেকাঙৰ সমস্যাটো এজন নিচী মানুহে ছল্ভ কৰিছিলে। যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুল মতে জইণ্ট হাইপাৰ কমিটি আমাৰ 2-3টা বনালে। ফাৰ্ষ্ট বনাইছিলে তাকাম সঞ্জয় ভাল হিচাপে লেকাঙক দিছিলে, প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে। কিন্তু সেই বস্তুটো আকৌ চক্ৰান্তত পৰি পেলাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বন্ধ কৰি দিলে, মানে এইটো ৰিভ'ক কৰি দিলে, আমি নেমানো বুলি। ঠিক তেনেকুৱা এজন মানুহ আকৌ ছেম কমিউনিটি, নিচী মানুহ এজনে বল্ডলি ক'ব পাৰিছে যে লেকাঙৰ যিটো জ্বলন্ত সমস্যা, যিটো অধিকাৰ মই ছল্ভ কৰিম, PRC প্ৰব্লেমটো মই ছল্ভ কৰিম, লেণ্ড এলটমেণ্ট, পজিশ্যন চাৰ্টিফিকেট মই দিম, অল্ড এজ পেঞ্চন মই দিম, বিধৱা পেঞ্চন মই দিম বুলি কোৱা মানুহজন মই দেখিলোঁ। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে এখেতৰ লগত এবাৰ আমি কিবা এটা ক্ষেত্ৰত আমি জইন কৰিম। হয়, আমি আশা কৰিছিলোঁ যিটো নেকি যুৱম এটে দেউৰীয়ে যদিও ফ্ৰম দেউৰী কমিউনিটি তাই বিলং কৰিছিলে, কিন্তু 25 বছৰটো তেখেতে সোণামীন ককাইদেউ সোণামীন হিচাপে ৰুল কৰিলে। আকৌ 5 বছৰ 30 বছৰ হ'ব পাৰে দেউৰী লেকাঙৰ ভূমিপুত্ৰ, কিন্তু তেখেতৰ হাতৰ মুঠিত আছিলে, তেখেতৰ ইচ্ছামতে চব কাম কৰিছিলে। গতিকেলৈ দেউৰী লেকাঙৰ যিটো প্ৰধান সমস্যা অধিকাৰটো তেখেতে আৱাজ কৰিব নোৱাৰিলে, তেখেতে মৰলেছ তাৰ মুঠিতে থাকিলে। গতিকে আমি ভাবিলোঁ যে যেনেকৈ হ'লেও গছৰ মূৰা হ'লেও লেকাঙৰ পজিশ্যনটো ৰাখি আছে, লেকাঙৰ যে এটা ভূমিপুত্ৰ আমি এটা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিছোঁ, যে কাম হওক নহওক গছৰ মূৰা হিচাপে তেখেতক আমি খুব ভাল পাইছিলোঁ। কিন্তু লাষ্টত তেখেতকো লৈ গ'ল। তেখেতৰ কিছুমান কাম কৰা দেখিলে, অলপ পজিটিভ ৱেত দেখিলে, কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট দেখিলে, আৰু PRC মামলা লৈ পেলাই যেনেকৈ মই বিদ্যুৎ ভাই কৈ গ'ল, একবাৰ লৈ গৈছিলে, সেইটো তেখেতৰ খিলাফ ভাবিলে, হয়তো একবাৰ লৈ গৈছে আৰু জিকি যেনে আৰু কিবা কৰিব বুলি হয়, তেখেতক টিকেটটো নিদিলে। আৰু তেখেতে টিকেটটো পোৱাত যোগ্য মানুহ আছিলে। তেখেতে বিজেপিৰ এটা মেইন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে MLA আছিলে, আৰু এজন লেডি আছিলে, আৰু লেডি হিচাপে তেখেতে কিমান কাম কৰিছিলে, আৰু তেখেতে চবতকৈ হাইষ্ট ভোট লাষ্ট টাইম পাইছিলে, তেনেকৈ কোনো পোৱা নাছিলে, অৰুণাচলৰ ৰেকৰ্ড আছিলে। আৰু সেই হিচাপে তেখেতে এইবছৰ যিটো নেকি তেখেতৰ ক্ৰিয়া, তেখেতৰ যিটো কেৰেক্টাৰিষ্ট, তেখেতৰ যিটো নৰ্মছ, যিকেইটা নৰ্মছ লাগে টিকেট পাবলৈ, তেখেতে মোৰ দেন এনাফ, গোটেইখিনি ওপৰতে এটা চবতকৈ ওপৰত আছিলে। আজি পপুলেশ্যন ফালৰ পৰা, আজি ভোটাৰ্ছ ফালৰ পৰা তেখেতে হাইষ্ট, আৰু তেখেতৰ কাম কাৰ্যৰ ফালৰ পৰা তেখেতে বহুত কোনো ৰেকৰ্ড নাই। তথাপিতো মানে জানি বুজি ইচ্ছাকৃত হিচাপে তেখেতক মানে, কিন্তু এদিন আগলৈকে টিকেট ডিচিশ্যন দিয়া আগলৈকে তেখেতক দিম চিন্তা কৰিব লাগে, মই আছোঁ, আমি দিম, কিন্তু লাষ্টত তেখেতক ঘিটাই দিলে। সেইকাৰণে সেইটো এটা কুৱেশ্যনছ অফ চেণ্টিমেণ্ট। আজি আপোনালোকৰ চেনেলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি এইবাৰ যিটো 2024 যিটো ইলেকশ্যন হ'ব, বিধানসভা ইলেকশ্যন হওক বা MP ইলেকশ্যন হওক, এটি বিশেষকৈ লেকাঙত 3টা ফেক্টৰত বেছ কৰি হ'ব। ফাৰ্ষ্ট, দ্য মেটাৰ অফ চেণ্টিমেণ্ট, মানুহবিলাকৰ চেণ্টিমেণ্ট কৰিলে। ছেকেণ্ড, দ্য মেটাৰ অফ এইটো কি কয়, এইটো
ন্যায় এণ্ড অন্যায় যুঁজখন হ'ব ন্যায় আৰু অন্যায় ভিতৰত হ'ব আৰু চেণ্টিমেণ্ট ওপৰত হ'ব আৰু থাৰ্ডটো মানে ঠিক আছে এইটো তিনিটা ফেচত মানে তিনিটা হেৰিত হ'ব গতিকে এই চেণ্টিমেণ্টটো আজি চেণ্টিমেণ্টেল ভোট কাষ্ট হ'ব আজি আপুনি দেখিছে আজিৰ ভিতৰত 300 এবভ আজি বিজেপিৰ পৰা মানুহ ইয়াত জইন কৰিছে এটা ফেকশ্যন বিজেপিৰ যিটো ফেকশ্যনে নেকি জয় দেউৰী ফেভাৰত কৰিছিলে কিন্তু জয় দেউৰীক যোনে ভাল নাপায় সেইকেইটাই মানে কৰি আছে কিন্তু জয় দেউৰীক ভাল পোৱা মানুহ বেছি আছে ইয়াতে আজি যিমানখিনি মানুহ আহিছে আজি জয় দেউৰীক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে খাৰা হ'ব বিচাৰিছিলে যে আমি আছোঁ আমি টিকেট নট ডাজেণ্ট কনচাৰ্ণ টিকেট আমি তোমাক কনচাৰ্ণ সেইকাৰণে আমি আছোঁ তুমি উঠিব লাগিব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট তোমাক খাৰা কৰোঁ এতিয়া আগতে আছিলে 5,000 এতিয়া 9,000 এবভ মানুহে দিম বুলি কৈছিলে তেতিয়া কি হ'ল ক'ব নোৱাৰোঁ তেখেতৰ পাৰ্চনেল কিবা প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে বা কোনোবাই হাই কামাণ্ডে তেখেতক প্ৰেছাৰাইজ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে টিকেটটো মানে এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'লেও তেখেতে হ'বলৈ মানে নিবিচাৰিলে গতিকেলৈ আমি লিখা শুনি চাব কথাটো আমি আগৰ পৰাই মই আপোনাক ক'লোঁ যে শুনি আছিলোঁ এখেতে এজন মানুহ আহিছে আজি নিচি মানুহ হয় চবতকৈ লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু তেখেতলোকৰ বিধানসভাত বেছি MLA চিট আছে আজি তেখেতলোকে কৰিব পৰা কাম একো নাই ইয়াত যিটো ইচ্ছা থাকে কৰিব পাৰে আজি বিধানসভাত গতিকেলৈ আমি আশা কৰিছোঁ যোৱাবাৰ তাকাম সঞ্জয়ক মই আনিছিলোঁ যোৱাবাৰ যেন বিজেপি ঢুকা দিলে মোক মই অকলে তাকাম সঞ্জয়ক মানে তেখেতে মই অনা নাই তেখেতে নিজে নেকি ক'লে মই আহক তাকাম সঞ্জয় 3,000 এবভ এক মাহ বিন হৈছিলে তেখেতে আহোঁতে এক মাহ বিন আছিলে ইলেকশ্যন কাৰণে তেতিয়া 3,000 3,500 ভোট পাইছিলে চক যিজন মানুহ নেকি ইমান উইদিন 3টা উইকত ইমান ভোট পাইছিলে এখেতেতো 2 বছৰ আগৰ পৰা তেতিয়া নিচি মানুহ কেনেকুৱা তেখেতে ৰাইজে বুজি পালে গতিকেলৈ আজি ছেইম কমিউনিটি তেখেতে আহিছে আৰু তেখেতে বল্ডলি ক'ব পাৰিছে আৰু তাকাম সঞ্জয় মই তেতিয়া মানে বহুতখিনি তেখেতৰ বহুত ষড়যন্ত্ৰ কৰি পেলাই তেখেতক হেৰি কৰিলে কিন্তু এখেতক নোৱাৰিব এখেতে আজি গোটেই মানুহখিনি এখেতৰ ওচৰত আছে আৰু এখেতে বল্ডলি কৰিছে যে লেকাঙৰ প্ৰব্লেমটো মই ছল্ভ কৰিম সেইকাৰণে মোৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়নটো মই ভাবিছোঁ যে মই ভগৱানক বহুত বিশ্বাস কৰোঁ কিবা নহয় কিবা এটা স্বচ্ছাই আছে এখেতৰ কথাত এখেতৰ অন্তত কিবা এটা স্বচ্ছাই আছে সেই স্বচ্ছাটো মই দেখিছোঁ গতিকে এনেকুৱা এজন মানুহ মই ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু গোটেই ৰাইজক লৈ যাব লাগিব গতিকেলৈ এই লেকাঙৰ প্ৰব্লেমটো এখেতে বাহিৰে আৰু কোনো কৰিব পৰা নাই আৰু নিচি মানুহে পাৰিব নিচি মানুহে ইজ দ্য হাইষ্ট পপুলেশ্যন ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু বিধানসভাতো নিচি মানুহে বেছি আছে তেওঁলোকে কৰিব নপৰা কাম এটাও নাই গতিকে যদি আমি এখেতক ছাপোৰ্ট কৰোঁ লিখা চাক ছাপোৰ্ট কৰোঁ এইফালে আৰু আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া লেকাঙৰ যিমানখিনি ইয়াত মানুহ আছে যিবিলাক নেকি চন অফ দ্য চইল এইবোৰ মানুহ বাহিৰৰ নহয় এইবোৰ মানুহ ইয়াৰে হয় যেতিয়াৰ পৰা এইটো নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰেকৰ পৰা ইয়াৰ আছে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চি হ'ল আৰু অৰুণাচল ইউনিয়ন টেৰিটৰী হ'ল ষ্টেট হ'ল তেতিয়াৰ পৰা এই মানুহখিনি আছে তেতিয়াৰ পৰা এই মানুহখিনি যিমানখিনি অৰুণাচল কেম ইনটু ভেৰিয়াছ পলিটিকেল ছেটআপ এভৰি ইন ছেটআপ দিছ পিপুলছ ৱাৰ টেকেন ইনটু একাউণ্ট পপুলেশ্যন নাম্বাৰ লৈছিলে কিন্তু ৱাইল গিভিং বেনিফিট দে আৰ ন'বডি এইটো আমাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে সেইকাৰণে আমি গম পালোঁ এতিয়া ৰাইজে চব গোটেইবিলাকে জাগৰণ হ'ল গোটেই জাগৃত হ'ল আৰু এতিয়া আপুনি সুধিবলৈ আগৰ লেকাং মানুহ নহয় এতিয়া লেকাং মানুহবিলাক এতিয়া জাগৃত আগতে মদ পানী খাই বা টকা পইচা বা খৰিব পাৰিছিলে এইবাৰ নোৱাৰে এইবাৰ লেকাং নোৱাৰে টকা দিব টকা ল'ব নষ্ট কৰিব কেলৈ তেওঁলোকৰ এটা মনত সোমাই গ'ল এইটো 25 বছৰ 40 বছৰ লেকাঙৰ মানুহ লেকাঙৰ টকা হয় লেকাঙৰ টকাখিনি যদি কোনোবাই সোণামিনি দিয়ে বা সজনাই দিয়ে বা বিজেপি দিয়ে আমি লৈ ল'ম কিন্তু আমি ভোট নিদিওঁ কেলৈ পাম নালাগে এটা লেকাঙৰ টকা হয় 25 বছৰ 26 বছৰ 30 বছৰ লেকাঙৰ টকাকে আমাক দিছে আমি লৈ লওঁ আমি এছ কৰিম আমি ভোট নিদিওঁ এইটো আজি মানুহৰ মাইণ্ডত সোমাই গ'ল গতিকে আমাৰ মানুহ বহুত আছে তেওঁলোকৰ লগত কিন্তু এনেই গৈছে তেওঁলোকে টকা খাবলৈ গৈছে তেওঁলোকে ভাবিছে যে আমাৰ বহুত ভোট কিন্তু তেওঁলোকৰ এইটো ৰং কনচেপশ্যন এটা আমি কৈ দিছোঁ গতিকেলৈ আমি এলাউ কৰিছোঁ তোমালোকে যোৱা লাগিলে গাড়ী ভাড়া দিম যোৱা গতিকেলৈ এইটোৱে আমি এতিয়া এইটো ফেক্টৰত পাছ হ'ব মেটাৰ অফ চেণ্টিমেণ্ট হ'ল আৰু এইটো ন্যায় আৰু অন্যায় যুঁজ হ'ব এইটো বস্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰ আৰু দিছ ইজ দ্য ফাইনেল মানে এইটো ডিচাইডিং ফেক্টৰ হ'ব মই কৈছোঁ ডিচাইডিং ফেক্টৰ অফ লেকাং লাইফ লেকাঙৰ লাইফটো লেকাঙৰ জীৱনটো এই ইলেকশ্যনটোৱে ডিচাইডিং ফেক্টৰ হ'ব এই 3টা ফেক্টৰত মানে এইবাৰ মানুহবিলাকে লাগিব একটা হ'ল মেটাৰ অফ চেণ্টিমেণ্ট এটা হ'ল দিছ ইজ দ্য ডিচাইডিং ফেক্টৰ অফ লেকাং পিপুল আৰু ন্যায় আৰু অন্যায় মাজত গতিকেলৈ এইটো ন্যায় দিব লাগিব ন্যায় দিবলৈ এখেতে আহিছে এখেতে ভ্ৰমণস্বৰূপ হিচাপে ইয়াত খাৰা হৈছে লেকাঙৰ দুখটো বুটলিবলৈ সেইকাৰণে এখেতৰ লগত গোটেই মানুহ আহিছে আমি আহিছোঁ আমি সকলোৱে আহিছোঁ আজি গতিকেলৈ মই আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर आई हैव जॉइन इन बीजेपी पार्टी
तो मुझे तो 5 साल मिला काम करने के लिए। उससे पहले हम एक्चुअली अलग पार्टी में था एंड मोर ओवर आई एम नॉट ए पॉलिटिकल लीडर एंड सो फार माई नॉलेज इज कंसर्न I have studied, I have seen about the Lekang conditions. So जितना साल से अभी यहाँ में इलेक्शन हो रहा है, कंसिक्यूटिवली 25 साल जो लेकांग वासी ने बीजेपी और कांग्रेस का साथ दिया, तो 25 साल में कभी लेकांग कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या ऑपोजिशन पार्टी का कोई एमएलए नहीं था। हर बार 5 times 6 times द पीपुल आर इलेक्टेड द रूलिंग पार्टी कैंडिडेट। इवन दो 25 साल तक लेकांग का जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो पाया। तो अभी बात ऐसा है, जो हम लोग का लास्ट ईयर 2019 में जो इलेक्शन हुआ, हम लोग का जो लोकल एमएलए दिया था, इसमें बीजेपी पार्टी का ही था। और मैडम ने, जम्मू मिटे देवरी मैडम ने बहुत कुछ डेवलपमेंट किया था उसका शासन में, उसका कार्यकाल में जो भी डेवलपमेंट किया था। तो मेरा ख्याल से अभी हम लोग को ऐसा लगता है कि लेकांग में एक्चुअली डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। इसका कारण ये है कि जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जो 11 साल में हम लोग का जो एमएलए था, कोई उसका मतलब ऐसा खराब रिपुटेशन नहीं था, पार्टी के लिए बहुत अच्छा से काम किया था और लेकांग को बहुत डेवलप किया था। तब भी वो मैडम को टिकट नहीं देने का वजह से हम लोग का जो लेकांग वासी है, सब लोग सेंटिमेंट हुआ है। क्योंकि लेकांग वासी जो है पूरा ये आपका बीजेपी पार्टी का आदमी था, फुल सपोर्ट था और अच्छा मेजॉरिटी वोट लेके हर बार वही रूलिंग गवर्नमेंट को जिताता है। लेकिन इस बार क्या क्या है, मेरा ख्याल से, ये मेरा अपना एक व्यू है और हम लेकांग वासी को मतलब बोलने के लिए जा रहा हूँ कि ये जिसने टिकट दिया था 2019 में जम्मू इटे देवरी मैडम को बीजेपी का, उसका मेरा ख्याल से एक प्री प्लान था कि ओनली दिस टिकट और द चांस इज गिवन ओनली फॉर 5 years, आफ्टर 5 years आई विल टेक इट अगेन। ऐसा एक प्री प्लान था। क्यों? जैसा मतलब जम्मू मिटे मैडम ने लेकांग में डेवलप किया था, वो डेवलपमेंट को नहीं चाहता था। और ये भी प्लानिंग था, अगर इस बार फिर जम्मू मिटे देवरी को बीजेपी का टिकट दिया जाएगा तो और 5 साल में ना जम्मू मिटे देवरी को हिलाने नहीं सकेगा लेकांग से। वो एक मतलब षड्यंत्र था। तो इसीलिए हम लोग का अंडरस्टैंडिंग में ये आ रहा है लेकांग का पीपुल को कि मतलब उसको टिकट नहीं देके फिर हम लोग लेकांग को दबाव रखना चाहिए, ताकि हम लोग जो कर सके वो मानना है लेकांग को। तो इसीलिए आज लेकांग का पीपुल जो है ना, बहुत सेंटिमेंट तो होके आपका एनसीपी में ज्वाइन कर रहा है। ये एक मतलब कारण है। और ऐसा नहीं है कि लेकांग का पीपुल जो है ना, एक्चुअली वी आर वेरी लव एंड एक्सपेक्ट ए गुड गवर्नेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। मोदी साहब को हम लोग, पेमा खांडू सीएम साहब को हम लोग खराब नहीं मानते, पार्टी को हम लोग नेगलेक्ट नहीं करते। लेकिन टिकट का जो डिसीजन दिया, उसी से हम लोग मतलब अगेंस्ट होना पड़ा। लेकिन अभी भी हम लोग का ऐसा लगता है कि अभी हम लोग कोई ऐसा नहीं बोलता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। आप लोग को मालूम है, जो इंडिया 10 साल में 10 रैंक में जो था, वो नरेंद्र मोदी ने 5 रैंक में जीडीपी का इंडिया को पोजीशन में लाया है। और भी बहुत डेवलपमेंट क्या हुआ है, ये सब लोग को मालूम है, जो अपना मतलब कांटेक्ट में रहता है। तो हम लोग का मेन जो मुद्दा है, हम लोग का जो फेवरेट कैंडिडेट है
जो प्रेजेंट 11 साल में जो एमएलए था उसको टिकट नहीं देने का कारण से लेकांग का पीपल जो है ना सेंटिमेंट हो के एनसीपी में सपोर्ट कर रहा है। और हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग का जो एनसीपी कैंडिडेट है सही में ये बहुत बोल्ड आदमी है। एक का हम लोग को ऐसा लग रहा है यस रियली ही इज ए वेरी पावरफुल पीपल एंड ही कैन डू द problems which is faced by the Lekang people, he can solve it. And for this aspect, for this hope, we are supporting Mr. Lekha Soni, NCP candidate. Thank you. নমস্কাৰ মই পহিলাতে আপোনালোকৰ চেনেল অৰুণাচল টুডে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টি ধন্যবাদ দিছোঁ। আমি আজি বিজেপি এটা ফেকশ্যন গ্ৰুপ আমি আজি এনচিপি জইন কৰিছোঁ। মোৰ দেন 300 এবভ আছে আমাৰ মেম্বাৰ আৰু আমাৰ বহুত মেম্বাৰ থাকি গ'ল জইন কৰিবলৈ। আমাৰ প্ৰত্যেক কমিউনিটিৰ পৰা আছে, লেকাঙৰ যিমানটা কমিউনিটি আছে, দেউৰী আছে, আদি কমিউনিটিৰ পৰা আছে আৰু আদিবাসী কমিউনিটিৰ পৰা আছে, কছাৰীৰ পৰা আছে, আহোমৰ পৰা আছে আৰু আমাৰ নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আছে। যিমান সম্প্ৰদায় আছে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আমাৰ আজি মেম্বাৰ ইয়াত আমি বিজেপি এৰি আহি আমি আজি ইয়াত এনচিপি পাৰ্টিত জইন কৰিছোঁ, যোগদান কৰিছোঁ। আমি আমাৰ এটা লক্ষ্য আছে কি আমাৰ এনচিপি কেণ্ডিডেট লেখা সোণী ডাঙৰীয়াক আমি জিকাবলৈ সেই লক্ষ্য লৈ পেলাই আমি আজি বিজেপিৰ পৰা আহি আমি এনচিপি পাৰ্টি জইন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ আজিয়ে জইনিং প্ৰগ্ৰাম খতম হোৱা নাই আৰু আমাৰ মেম্বাৰবিলাক আহি জইন কৰিব। আমাৰ মহিলাবিলাক প্ৰায় থাকি গ'ল আৰু কৈ আছে, ফোন কৰি আছে যে হ'ব মোক কৈছে আৰু প্ৰগ্ৰাম ৰখা যাব আৰু আমাৰ হেৰি জইন কৰিব আহি, এইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ। প্ৰগ্ৰাম শেষ হোৱালৈকে আপুনি ধৰক আমি যদি কওঁ, আমি এতিয়াও ক'ব পাৰোঁ আমি ভোটাৰ্ছটো ইমানটো অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ। ভোটাৰ্ছো আমাৰ লগত যথেষ্ট আছে। আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ আমাৰ ফেকশ্যন গ্ৰুপত মোৰ দেন 7,000 ভোটাৰ্ছ আছে আৰু সেই 7,000 ভোটাৰ আমি আগৰ এনচিপি পাৰ্টিৰ লগত আমি যোগদান কৰি আমি বহুত বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ।